मेरा नाम लीला है, भणी गणी ने मैं टीचर बनती हूँ। मेरा नाम कैविन है, मैं बड़ी ने मिलिट्री की नौकरी लेना चाहता हूँ। मेरा नाम गोविंद है, मुझे पढ़कर पुलिस बनना है। मेरा नाम देवल है, मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़ा होकर मुझे अच्छा आदमी बनना है। क्या होता है क्लास में? हम लोगों से छुआछूत मांगते हैं, इसलिए पीछे बैठाते हैं। कौन छुआछूत मानते हैं? टीचर। आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से बिठाया। अपने हिसाब से हम लोग को कहता है समान। ये छुआछूत क्या होता है? वो सबका आगू बैठाता है, हम लोग का पाँच करता, और मास्टर सबको पढ़ाता है, हम लोग के यहाँ खाली हम लोग बैठाते रहता है। टीचर कौन सी बिरादरी के हैं? रावत। और तुम लोग सब किस बिरादरी के हो? हम लोग नहीं। तुम क्या हो? रावत। अच्छा विक्रम, बता तुम लोग आगे क्यों बैठते हो? रावत है इसलिए। रावत आगे बैठते हैं, पीछे कौन बैठते हैं? हरिजन। ये सब हाँ, रावत घर के भी खड़े हैं। कौन है यहाँ पे रावत? हाँ, क्या है ये सब? रावत क्या है बगल में सब? आइए ना, थोड़ा आगे आइए ना। कुछ हो जाए सर। आप रावत हैं? आप रावत हैं? यस आप मास्टर हैं? यस सर। आप मास्टर हैं? यस सर। नाम क्या है आपका? महेश प्रसाद रावत। कैसे बोले? ये छुआछूत क्यों कराते हैं आप स्कूल में? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। क्लास में क्लास बिठाते हैं सबको। क्लास में नहीं बैठे। हम लोग आगे बैठते हैं तो पीछे कर देते हैं सर। और तुम लोग? हम लोग के आगे बैठाते हैं। आप बताइए भाई। यस सर। क्या कह रहे हैं? ये तो सर, इसे तो गलत बतला रहे हैं। हम बाई क्लास में क्लास बैठाते हैं सर। नहीं सर, सब लड़का को पीछे बिठाता है और कहता है कि गलत बोल रहा है। ऐसा है सर कि सबको पीछे बैठाते तो आगे किनको बैठा? नहीं, एकदम हरिजन टोला वाला सब पीछे बिठाता है। यहाँ चमार रहते हैं सब, इसलिए छुआछूत करते हैं सर। हम लोग को बच्चा पीछे बैठाने का काम करते हैं। छुआछूत तो है ही नहीं सर, कहीं भी नहीं। जी नहीं सर। आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं सर, झूठ बोलता है। चंदू भाई हेतल बहन, चंदू भाई, हेतल बहन, चंदू भाई, रमीला बहन कर भाई, मीरा बहन ईश्वर भाई सोलंकी। तीसरा पांचवा सातवा। હવે સ્કૂલમાં તમે જાઓ, ભગવાન તો ખવાય ને, એ સિવાય તમારે શું કરવાનું? આ બધું આખું મેદાન પાછળ થોડી ચોખ્ખું ને વાદા હોય. સોમવારે મારો, મંગળવારે એવી રીતના બધા છોકરાનો વારો હોય? સિરોયા નહીં. ના સમજાયું, સમજાવો. સમજાયું? ના સમજાયું. પટેલા સિરોયાના વારા ના હોય, એમને વારવાનું નહીં કે ઢગલી ને તો વાસણ નહીં ખસવાનું, અને અમારે કરવાનું. આ પહેલું મીઠું બનાવે ચા મીઠા? હાલે બધાને ચા મીઠા આવડે? ચામાં શું? પાણી 1 ગ્લાસ લેવાનું, પછી ઉકાળીને ખાંડ નાખી દેવાનું, પછી દૂધ ચડી જાય તો દૂધ ઉકળી જાય તો દૂધ થઈ ગયું. તો છોકરીઓને ચા મૂકવાનું આપે કે છોકરાઓને બી આપે? છોકરીઓ છોકરાને આપે.
આ તમારા બાળકોની એમ રોજ સાથે ના કરીએ તમારે બે ડોલ લઈ બે જણ જઈ અને પછી બે ડોલ નરેહી ભરીને આવવાનું અને વારી નાખવાનું સવારે વાગે પછી પાણી દે દેવાનું જે ગંદુ હોય ને ફરી સાફ કરી નાખવાનું 20 ડોલો રેડવાની પાણી 20 ડોલ. As India proudly celebrated her Independence Day recently, several little children in Gujarat are still suffering as manual scavengers. A certain distressing story coming up. They are made to clean toilets and even cart away dead animals, as Meghdut Sharon now reports. 9-year-old Janak Ben goes to school like other children her age, but then in school she is treated differently. Janak Ben is sometimes asked to clean the toilets and sweep the classrooms, all because she belongs to the Dalit Valmiki caste. They make us clean the toilets. We're not allowed to eat food sitting with the others. And I also have to sweep the classrooms at times. And it's not just Janak Ben in Surendranagar. Many other Dalit children in schools across Gujarat are forced to do the same thing. Work as manual scavengers, sometimes for a small remuneration. We have to drag away dead animals like cats and dogs. We are paid 20 or 25 rupees. Social activists from the NGO Navsarjan brought this out in the open by organizing a rally of 100 children at Ahmedabad. Gujarat is one of the 18 states which has adopted the act against manual scavenging. But the NGO's figures say that manual scavenging exists in 12 districts across the state. And that of the 13 lakh manual scavengers in India, 65,000 are in Gujarat. We have already filed a petition in the High Court and the Supreme Court, but the government always produces an affidavit denying the existence of the practice in Gujarat. So by organizing the children from 47 talukas covering 12 districts, we want to claim and we want to show the government that this practice is inhuman. In 1911, it was at this very place that Mahatma Gandhi called scavenging a shame to the country. These children are proof the shame still exists, nearly 100 years on. With Gaurav Shah and Meghdut Sharon in Ahmedabad, in New Delhi, Shauli Rudra. मैं अमित कुमार हरियाणा राज्य के उशतरा जिले के सलेमपुर गांव से, जहां पर एक अध्यापक द्वारा एक दलित बच्चे अमन को 100 के करीब डंडे लगाए गए। इस घटना से अमन को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। ये कोई हरियाणा में पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हरियाणा में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। मेरे साथ भी स्कूल टाइम में ये घटना दोहराई जा चुकी है। इस घटना ने मेरी आप बीती को फिर से तरोताजा कर दिया है। स्कूल एक मंदिर है जहां पर समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, पर अगर वहीं पर असमानता का व्यवहार हो तो समाज के अंदर जो समानता की कल्पना कर रहे हैं वो कैसे हासिल होगी। टीचर ने अमन को इस कदर क्यों मारा है? वो थोड़ी गलतफहमी होगी। क्लास में बच्चे कम थे, मास्टर जी जो पाठ सुन रहे थे वो बार बार एक ही बच्चे पर आकर लग गया था और वो प्यार में ही मार रहा था। वैसे कुदरती इंसान वैसे बन गए, कई बार बच्चों को शरीर ऐसे हो। उसके बाद असर ये हो रहा है कि यहाँ को टीचर जाना चाह रहा है। क्यों? टीचर में बैकम हो रहा है क्योंकि गाँव वाला ने मास्टर की पिटाई भी करी थी उस दिन। पहले तो 3-4 बच्चों ने बोल लिया था, अले फिर उन पर तो ठीक नहीं उठ गया। अले फिर काले की छोकरी आई थी, अले फिर उसका तो 3-4 मारे थे मास्टरों ने, उसका भी कैच के मारे थे पिंडियों पर। और फिर मेरी बारी आई लास्ट में, फिर मेरा मारे। यही वो स्कूल है जहाँ पर टीचर ने अमन को इस कदर बेरहमी से पीटा कि किसी भी अन्य टीचर ने उसको छुड़वाने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि दूसरी तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। दलित समाज सबसे पिछड़ा तबका है और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे इस तबके को ऊपर उठा सकते हैं। पर अगर शिक्षण व्यवस्था में ही ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इस पिछड़े तबके को आगे बढ़ने के मार्ग को रोक देती है। इस हादसे से दूसरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा नहीं, बच्चे ठीक ठाक, अब कोई ऐसी बात नहीं है, प्यार से पढ़ रहे हैं सारे, किसी में कोई बैग कोई बात नहीं। आए दिन स्कूलों में बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कानून तो बेशक बना दिए हो, लेकिन दलित बच्चों पर अत्याचार आज भी बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं।
अगर अध्यापक बच्चों को ऐसे पीटते मारते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चे स्कूल के नाम से भी डरने लगेंगे। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अध्यापकों पर और कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और उनको अनदेखा न करते हुए अध्यापकों को सजा भी मिलनी चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य बच सके। मैं अमित कुमार, जिला कुरुक्षेत्र के सलेमपुर गांव से इंडिया अनहर्ड के लिए। Shy Jitendra Kumar Meena left his hometown Dausa in Rajasthan to live his big city dream here at AIIMS. Instead, this young Dalit says life has become a nightmare. He's abused almost every day. हमसे बोला जाता है कि साले ये ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर। In this nerve center of anti-reservation protest, no upper caste wants to be his friend. कोई मेरे से बात भी नहीं करता है जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट कोई। And now he has to vacate his room because hostel number 1 of AIIMS, where he stays, is mainly upper caste dominated. उन्होंने कई बार बोला है कि हम नहीं चाहते कि तो यहाँ पर रहे। He's complained but says no one is listening. And since the key to his future lies here, he stays on, despite the humiliation. For Dalit students like Jitendra, hard as they might try, there is no escaping their identity. The merit list announces it, so do ragging sessions. And there's no escaping the abuse that comes with it either. The result, ghettos in hostels. Records show that of the 45 SC/ST students who've been at AIIMS the past year, 34 are living in clusters. Maybe it's just due to the inferiority complex. That they want to live together. Yes. It's not just a question of residence. Dalit students are seldom elected to union posts. And of late, there are series being circulated which show some students burning Ambedkar's books. Dr. Lakhiram Murmu, professor of surgery at AIIMS, is a tribal. He says the caste divide existed even when he was a student here. But post the reservation ruckus, more cases are being reported. The prejudice is very difficult to get rid of, but as far as the discrimination is concerned, that can be limited and that has been limited by the Constitution of India. But it's not just AIIMS. In centers of excellence across the country, caste prejudice is a reality. Official policy may try and create equal opportunities by reserving seats, but social attitudes remain tragically fixed, untouched by official declarations. Even in a world of young, highly educated achievers, a casteless society is still a distant dream. Here is one such story, the story of the death of merit, the story of Dr. Jaspreet Singh. It is based on the testimonies of parents and family members of Dr. Jaspreet Singh, 22 years, who was a student of final year MBBS at Government Medical College, Chandigarh. He committed suicide on 27th January 2008 by hanging himself on the 5th floor of his college's library. वो उसको 1 मार्क्स से रखा है, 1 मार्क्स से कहा भी उसने कि मैंने जो करना था कर दिया. You do whatever you want to do. You belong to schedule caste. It is in the suicide note. It is in the suicide note. And from the last 3 years we are waiting for justice only. And what is the result? 3 years are gone and we are still waiting for justice. कम्युनिटी मेडिसिन ने प्रैक्टिकल दिता है ना, वो बड़ा उदास आया. कहना मम्मी 6 स्टूडेंटा चो सिर्फ एक मैं ही स्टूडेंट, एक मैनू ही सब तो घट नंबर दिते हैं. 4 नंबर मेरे कल्ले दे लाए, बाकी सब ना 6 नंबर लाए उन्हें. 6 नंबर पास होंदा 4 फिर प्रैक्टिकल दे के उदास आया. मैंने पूछा उससे बेटा आज क्या बात है? कहना मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ. अपने गले से लगाया और उसको हौसला दिया. कोई बात नहीं बेटा, आपने ना अब रिटर्न की तैयारी करनी. ने इतनी तैयारी की, एक लाइन उसकी बुक है जो कम्युनिटी मेडिसिन की, वो देखो एक बुक उसने अंडरलाइन करके पढ़ी और उसकी इतनी तैयारी की, फिर भी उसको फेल कर दिया उसने. और बाद में पेपर चेक हुआ पीजीआई में, पीजीआई में उसका पेपर चेक हुआ बाद में और उसमें वो पास हो. कभी उसकी कोई कमी, कभी नंबर कम नहीं आया, कभी वो फेल नहीं हुआ. और उस एमबीबीएस 4 साल की है, कभी उसकी वहाँ पे सप्ली नहीं आई.
में उसने फर्स्ट डिवीजन लिया, +2 में वो क्लियर किया है, उसने टॉप किया, 23 मॉडल से उसने +2 की है, अराउंड 80% के अराउंड उसके मार्क्स थे उसमें। ईयर उसने +2 क्लियर किया है, उसी ईयर उसने एग्जाम दिया, 2004 में उसने सीईटी का एग्जाम दिया और उसी मंथ उसी ईयर उसने क्लियर किया, कोई ड्रॉप नहीं किया, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की। एंड इन द +1 आल्सो लाइक स्टूडेंट मेडिकल के स्टूडेंट है, कोचिंग लेते हैं, उसने कोई कोचिंग नहीं ली, स्टडी के बेसिस पर उसने ये सारा कुछ क्लियर किया है। उसने MBBS में एडमिशन ली एंड फ्रॉम द 3 इयर्स वो स्मूथ जा रहा था, उसका कोई सप्ली नहीं थी, एवरीथिंग वाज गोइंग सो परफेक्ट कि कोई कहीं उसको था ही नहीं। एंड वो भी खुश था कि कोई मेरी कोई वो नहीं है, मेहनत करता था और उसको वो कर मिल रहा था, एग्जाम हो रहे थे। बट द थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd ईयर जब उसका कम्युनिटी मेडिसिन का, क्योंकि लास्ट ईयर था उसको एग्जाम देना था, क्योंकि वो कम्युनिटी मेडिसिन का एज मच आई नो कि 4 इयर्स में एक बार एग्जाम देना होता है इनको, एक बार। तो उस वक्त उसके वाइवा थे एंड उसका उस वक्त जितना स्ट्रेस में आया इसके HOD के साथ जो बात की है ना इसने, HOD ने इसको बोला भी ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी गया था उसके साथ, उसको अंदर बताया उसने भी, मुझे इसने शेड्यूल कास्ट बोला और आगे से मुझे फेल पास करने से मना कर दिया। वो HBC 54 थे, हमारे पास उसका लिखा हुआ अभी यहाँ, मुझे बोला कमिट किया मेरा कैरियर स्पॉइल करना। वहाँ पर सूद थे मिस्टर इन्होंने वो सीगे फाइनेंशियल दे वो सीगे उन्होंने कोई भी इसने किया भी मेरा कैरियर स्पॉइल करेगा, उन्होंने भी रिटन स्टेटमेंट मेरे पास है, भी जस्ट मेरे को एनी तरीके ये बोला है। Following year in 2009, Jaspreet's younger sister Harpreet Kaur, 20 years of age, also committed suicide on the day of Raksha Bandhan after tying Rakhi on the photograph of her brother. She was doing her bachelor's in computer applications, BCA, and went into severe depression after the death of her much beloved and only brother. सारा मेरी छोटी बेटी अन्य स्ट्रेस चलेगी भी वो पीछे तो ट्रीटमेंट करा गया, वो पिछले साल रखियां तो बाहर रखियां बनी बेटे की फोटो थी वो सुसाइड छोटी सी लगाव ज्यादा सीगा, रात दिन बस होना शुरू कर देता, पीछे तो ट्रीटमेंट चलता सीगा। कहती जीने नहीं भरा तो बिना की लेना है, ब्रदर तो बिना जी के क्या करना, कहती मैं दी शादी मम्मी मैंने भी रहना इसलिए मैंने भी मर जाना, भैया चले गए बाहर मैं उसने जाना था सर्जरी की लाइन में और वो चाहता था कि जैसे मैं लोकलाइट हूँ मैं यहाँ पे कि मेरी 32 में एडमिशन हुई है और मैं PGI में MD में सीट लेना चाहता हूँ सर्जरी में, और मैं सर्जरी में सीट लेना चाहता हूँ और MD में अपीयर होने के लिए इनका क्या क्राइटेरिया है, लाइक MBBS में हमें यहाँ अपीयर होने के लिए हमारा क्राइटेरिया है कि हमें +1 और +2 यहाँ से की होनी चाहिए, हमारी कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए, हमें लेना चाहिए। तो उसके सर्जरी के लिए अपीयर होना था, उसके ये प्लान्स थे कि मुझे MD में सीट लेनी है सर्जरी में PGI में, और एक इनका ये है कि अगर आपको यहाँ पे लेना तो आपकी कोई MBBS में सप्ली नहीं होनी चाहिए, उसकी सप्ली नहीं होनी चाहिए, उसके ये फर्दर प्लान थे। तो और वो चाहता था कि मैं अगर मुझे यहाँ सीट मिली तो मैं जो ये है इसमें मैं जनरल में सीट लूंगा, और उसके लिए आप उसको बिना किसी सप्ली के लिए वो चाहिए था, और वो इसी के लिए इतनी तैयारी कर रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई सप्ली आए, और उसकी कोई सप्ली आ भी नहीं रही, और उसने उसका फर्दर सारा ही प्लान जो था मैं जनरल सीट लवांगा, मैं रिजर्व पे बेस पे सीट नहीं लूंगा। रिजर्व का बंदा सी ਜਿਹਦੇ को केस जब सुसाइड हुआ उस दिन उन्हें की FIR की है, उस सारा एडमन ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ FIR क्यों लॉन्च की है, वो कहता मैं इसलिए किया भी मैंने DDA लीगल की राय के साथ किया, मैं अपनी मर्जी से नहीं किया ये, नहीं तो उन्होंने FIR ही नहीं थी होने देनी। उसको नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे ही चेंज फ्रॉम हिज पोस्ट, ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट डे। उनको पता था वो इतना सख्त है अभी उसने इसको अंदर डाल दिया, उसको बचाने के लिए उसने लाइन और ला दिया, जिसने नहीं अंदर किया वो इतना सख्त था ना, वो कहता आपको बेटा तो नहीं दे सकता पर इंसाफ मैं आपको दूंगा। ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਿਆ।
अच्छा अच्छा ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ हैंड राइटिंग ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਗਈ। हैंड राइटिंग ਦੀ ਰਿਪੋर्ट वेरी क्लियर आ गई, सिग्नेचर एंड द सेम पर्सन कि हर चीज उसके अगेंस्ट है, सब कुछ है उसके अगेंस्ट। क्या नहीं है, उसकी सुसाइड नोट है उसके पास, उसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, उसके ही कॉलेज के बंदे जो जिसने जसप्रीत के फेवर में मार्क्स नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद वो बंदा स्टिल ही इज होल्डिंग द सेम पोस्ट एज द HOD ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। नो एक्शन फ्रॉम द कॉलेज साइड कि एक बंदा है जिसने इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट की सब कुछ, उसको खत्म ही इस दुनिया में ही नहीं रहने दिया, उसके कॉलेज ने उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया। केस किया हमने, जगह जगह जाके सब कुछ किया, इतने केसेस सब कुछ होने के बाद वो बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एंड हमने अपना बेटा भी खोया, हमने सब कुछ खोया, एंड स्टिल वी आर रनिंग, दौड़ रहे हैं कि कहीं तो जाके कुछ बने, पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। इतना हम जहाँ इसको क्या करें हम कि क्या सब जहाँ भी जाए केस चल रहा है जी, केस चल रहा है जी, केस चल रहा है। हमें नहीं पता इस केस का कहाँ अंत होगा, उसको सजा मिलेगी भी कि नहीं। जिस तरह हमें देखने में आया कि एक HOD ने अपने स्टूडेंट के साथ कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया है और उसको कम नंबर दिए हैं। उसके बाद 3 डॉक्टर्स की बॉडी ने उसको पास कर दिया है, लेकिन जो HOD हैं नवीन किशोर गोयल, जो इसमें अक्यूज़ हैं केस में वाले, उन्होंने तो उनमें फेल कर दिया, उन बेस पे इसे फेल करार दिया गया। तो लड़के ने उसके कारण सुसाइड कर लिया, क्योंकि सुसाइड नोट में जसप्रीत ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि HOD ने ये कहा है कि आगे भी मैं तुझे पास नहीं होने दूंगा, जो कर सकता है कर लो। अब ये हमें ये नहीं समझ में आता कि कोई इस चीज़ पे इतना क्यों रिजिड है कि वो कास्टिज्म के बेस पे नंबर देने लग गए हैं। एट प्रेजेंट ये केस एविडेंस पे चल रहा है। पुलिस ने इनिशियल स्टेज में FIR रजिस्टर किया, वो SC/ST एक्ट के अंदर नहीं किया, वो भी नेशनल SC/ST कमीशन के सामने हमने अप्रोच किया तो SC/ST एक्ट पर इसमें ऐड हुआ। उसके बाद इसने हाई कोर्ट तक एंटीसिपेटरी बेल लगाई जो डिसमिस हो गई थी। दे आफ्टर ही हैज़ फाइल्ड क्वेश्चनिंग पिटीशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC, लेकिन उसके बीच में इसको इंटरम बेल दे दी गई। वो यहाँ पे बिना सरेंडर किए इसको रेगुलर बेल भी दे दी गई। इसकी कोई अरेस्ट नहीं हुई, आज तक एक दिन भी ये जेल में नहीं रहा। इवन देन SC/ST एक्ट के अंदर स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती, लेकिन इसको बाहर की बाहर ही बेल दी गई है। ये एक दिन के लिए भी अंदर नहीं गया। और जिस तरह इस समय वो HOD हैं, पहले भी HOD थे उस समय, लेकिन ही इज स्टिल वर्किंग विद हिज डिपार्टमेंट। उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और अंदर नहीं गए हैं। वो जुडिशरी जो हमारे जस्टिस बैठे हुए हैं, उन्होंने देखना है कि इनकी बेल बाहर बनती है या नहीं बनती, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनका है मैटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू SC/ST एक्ट एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट की जा सकती। नर्सिंग फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन वहाँ से मैंने किया। हमारे 50 में से 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 43 अलग हो गए, 7 जो रिजर्व कैटेगरी के होल द कॉलेज जो आपको डील कर रहे हैं, आपको उन पूरे कॉलेज के प्रिंसिपल जो भी है, लेक्चरर्स हैं, उनको पता होगा कि ये जो 7 स्टूडेंट हैं वो रिजर्व कैटेगरी है। एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे पहली डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से शुरू हो जाती है कि ये 7 स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी के। आपको सामने से कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी क्या होगा, आपके बैक से होगा। इवन मैंने 4 इयर्स डिग्री कोर्स किया है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। ये मेरे ब्रदर के केस में था, उसको उसके मुंह पर कह दिया कि हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारे उन्होंने बैग के पीछे से किया। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कुछ हमारी कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको स्पेशली उन्होंने इंटेंशनली रोका गया है। हमारे पास हमारी डिस्क्रिमिनेशन, हमारे पास उसी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रूफ्स नहीं होते कि हमारे साथ होती है, बट हम उसको कह नहीं सकते कि हमें इस बेसिस पर किया जा रहा है। अगर हमें 1 महीना हरासमेंट मिल रही है और 1 महीने के बाद आपको गाइडेंस दी जा रही है, वो आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिंगल शेड्यूल कास्ट मैंने आप जनरल कैटेगरी में सीट ली है, 50 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, 50 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन से किया। नेशनल होल इंडिया में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, एंड दैट एट दैट टाइम देयर वर ओनली 50 सीट्स थी, एंड मैंने उसको जनरल कैटेगरी में क्या किया, सीट ली है। उसको भी नंबर लिया, 27th रैंक था मेरा, जनरल में होल इंडिया 27th रैंक था मेरा। तो क्या हुआ कि मैं जनरल में सीट लेने के बावजूद भी ड्यूरिंग द 4 years ओनली, ड्यूरिंग माई डिग्री कोर्स ओनली, आई वाज
treated as a scheduled caste as well as only a average student, not very good student. What was the reason? Because I belong to scheduled caste. We were not at all entertained anywhere. स्टूडेंट्स को इकट्ठे करो जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके साथ काउंसलिंग करो कि बेटा हम आपके साथ हैं। कोई भी तकलीफ है हमें बताओ, हम आपकी सॉल्व करेंगे। ऐसा कदम मत उठाओ जैसा कि जसप्रीत ने उठाया। और माँ बाप का कुछ नहीं पीछे रह जाता। माँ बाप बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ा लिखा के इस जगह पर खड़े करते हैं। हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, बड़ी लगन से पढ़ाया। मैंने सिलाई की, दिन रात मेहनत की, दुकान से ले लेके काम किया और सिंगल अर्निंग। मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, 4 बच्चे 3 बेटी हैं, एक ही बेटा था मेरा और बड़ा लायक था। काम करना पड़ता था। जब मेरे बच्चे इतने लायक थे तो काम करने में क्या हर्ज है। हमारी कोई जमीन नहीं, कोई जगह अपनी थी, कोई कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक नौकरी पेशा थे और मैं हाउस वाइफ घर में सिलाई का काम रात करती थी और उनको पढ़ाती। और मेरा बेटा बहुत मेरा साथ देता था। उसने कभी मुझे कोई मौका नहीं दिया भी कोई, उसने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा वो और डॉक्टर बना। वो क्या बताऊंगा, और वो बना। फिर बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बस यही कह सकते हैं कि आपको अपने आप को ना क्या कहते हैं, हमें जो जस्ट एंटर कर रहे हैं इमेच्योर है, जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है, वी शुड सपोर्ट दैट कि उनको अपने आप को वो खुद को अपने आप को आइसोलेट ना फील करे कि हम अकेले हैं। हमें इनको गैदर करना है और इनको मोटिवेट करना है। जैसे मेरे जसप्रीत ने बोला मैं अकेला ही रह गया, मैं अकेला भी सपोर्ट करो, मैं अकेला। इसीलिए जसप्रीत ने सुसाइड किया भी मेरा कुछ नहीं बन सकता, मैं अकेला रह गया। हम स्टूल कास्ट है, हमें कोई नहीं देखेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए उसने जाके मुझे बिना बताए उसने सुसाइड किया। एक और बच्चे ने थे सुसाइड किया ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ 4,500 ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ 32 ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। PIL ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇसी ਕੇਸ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2 brilliant lives from the same family were snuffed out at one go by a casteist professor. प्रिंसिपल ने जा कहा है कि हमारे कल है, तू डॉक्टर नहीं बन सकता। 50 साल के बाद ये लड़का निकला है। 50 साल तक अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना हमारे यहाँ ऐसे एम्स का। कि हमको पापा जाति का बहुत ही ज्यादा हमें दर्द है और हरिजन के नाते अपन को जो है हमें प्रोफेसर लोग लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। बोले ये बोलता था कि अगर हम यहाँ से पढ़ लिख जाएंगे तो हम इंडिया छोड़ देंगे, हम विदेश में रहेंगे। हमको यहाँ बोलो प्यारो बेटा होनहार को हमारा लूले। उसी से लगती हूँ।
सब लोगों ने अपने पैसा लगा लगा के और लोन निकाल के दुनिया की बीमारियां सब में 2,500 रुपये पट्टी मिला, तो इनने भी लगाए, हमने भी लगाए, सब लगाए। चलो दिए दे, अब जुआ जाना थे कि क्या हो जाए। कभी बाल मुकुंद आपको बताया नहीं कि तुमको क्या परेशानी है, क्या बताते थे ना, पहले से हम टॉर्चर करते थे, प्रोफेसर लोग सभी इसको टॉर्चर करते थे बहुत बुरी तरह। पहले साल से? हाँ, पहले साल से कि यहाँ आरक्षण लेके आ गए हैं, ये हरिजन आदिवासी ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा बोलते थे उस बच्चे को। अच्छा। सीधे बोलते थे? हाँ, सीधे बोलते थे। हमने इनमें से बोला कि तुम प्रिंसिपल से कुछ कह दो जाके, कि हमारे लड़का को पढ़ता न कायदा हो, कम से कम हमारे लड़का को पढ़ लें, 2 किलो हमारे लड़का को तुम बोलो नहीं, कछु बोल लड़का बोलो, कल नहीं मैं पढ़ के वो करूँगा, मैंने पास करूँगा, तुम बोलना नहीं तो मुझे 6 साल की पढ़ाई बर्बाद कर देगा। जी रुक गए जी लोग, हम इनको बताते रहे कि लड़का को दिमाग सही नहीं जाओ के, तो आज प्रिंसिपल तकलीफ है, प्रिंसिपल ने जा कहा है कि हम हमारे कल तू डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ, कौन प्रिंसिपल का क्या नाम? वो आनंद कहा, आनंद ने बोला। कल तू नहीं है डॉक्टर बनने का, वो तू डॉक्टर बन नहीं सकता। सुनने की कि क्यों नहीं बन सकता, कल तू नहीं बनता, तेरा दिमाग नहीं है बनने ला। और कल तू हरिजन आदिवासी कहाँ कहाँ से चले जाते हैं, पढ़े लिखे कुछ है नहीं है, वो कल कहाँ से आ जाते हैं। कई लड़का सुबह हमें घर बताओ था, जब बालक हमारे यहाँ घर में आता था तो बताता कि टीचर लोग हमसे जो है घृणा रखते हैं, हमको प्रश्न का उत्तर बताने में संकोच करते हैं और टॉर्चर करते हैं कि ये अशुद्ध है, जिनको जरा पीछे रखो, तुम आगे मत बोला करो, ऐसा उनकी जबान बंद कर देते थे। बोले पापा जी ऐसा बोलते हैं हमको, तो हमने कहा बेटा इस पर हम तो कुछ कह नहीं सकते तुमको, और ऐसा भेदभाव वहाँ नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई ऐसा है कि तुम अपनी पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ो तो तुमको पसंद करेंगे ज्यादातर। तो उसने कहा ठीक है। जब भी घर आता था, जब भी बताता कि मेरे को यहाँ टॉर्चर करते जाति के नाम पर। 5 प्रोफेसर थे, 5 लोग परेशान करते थे उसको, एक की बात नहीं वाचा। हाँ, कौन कौन 5 थे? अब नाम तो मैं बाल मुकुंद ने बताया। हाँ, बाद में बता देते। बाल मुकुंद ने कभी बताया वो? हाँ, बताए थे। किस सब्जेक्ट के या किस विषय के हो, किस चीज में वो परेशान करते थे? वो तो प्रैक्टिकल में ज्यादातर परेशान करते थे। प्रैक्टिकल में सबसे कम नंबर देते थे, सबसे कम नंबर दिया करते थे। हाँ, कम नंबर देते थे हमें। ये बताया कि हाँ, भैया ने बताया था। हम लोग बल्कि हमने ये कहा कि भैया अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम तो उनके विरुद्ध जरूर रिपोर्ट करेंगे। हाँ, नहीं दीदी, और रिपोर्ट नहीं अपन को करना है, क्योंकि नहीं तो हमारी 6 साल की जो पढ़ाई है वो खराब हो जाएगी। नहीं तो हम तो अगर वो आज होते तो वास्तविक हम उनके विरुद्ध अगर रिपोर्ट करते तो हम ही लोग जीतते और उनको पूरों को जरूर सजा मिलती। ये बात है। जैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनके स्टूडेंट करते ना फोन, उनके प्रोफेसर करते ना फोन, कोई तो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्म करता हम लोगों के लिए कि इसकी तबीयत ऐसी है ना। आपको कोई इन्फॉर्मेशन कुछ अगर हम लोग देते, इतने गरीबी से उठे हुए हैं, बहुत मेहनत से उनको पैसा इतना लगाया था, वो इतना इंटेलिजेंट थे कि IIT में भी उनने क्रॉस किया था, उसका ऑल इंडिया में 8वां स्थान था उसमें भी, और वेटनरी के में भी उन्हें 6 माह उन्हें वेटनरी भी कर ली थी, और वहीं पर रहते हुए भी इन्हें टेस्ट दिया था जो एम्स का, तो उसमें निकल गए थे, और CPMT में निकल गए थे, MBBS उसी साल, उसी 3 परीक्षा उन्हें क्रॉस की थी, होशियार थे वो। और अभी वो कलेक्टर की तैयारी कर रहे थे। अगर उन्हें आत्महत्या करनी थी तो उन्हें 10 ही दिन बाद उन्हें 15,000 की किताब खुली नहीं है भैया पैकेज में। तो 6ठे से बाद हम नवोदय थे। हाँ, नवोदय। उनके 12 में कितना परसेंट आया था? 78%। हाँ, 78%। राष्ट्रपति ने पुरस्कार था। हाँ, पुरस्कार था तो राष्ट्रपति ने दिल्ली से भिजवा तो होता ही होता है। देखो ये सब पूरी किताब ही किताब है, अलग हाँ जी करवा इनका अभी देखो पूरा छत ऐसी पड़ा वो जैसे ये पड़ा ना, बस ऐसे पूरी कमाई इन्होंने बच्चे के उसमें लगाई। अच्छा, बुक्कड़ जो बोल रही थी कि कोई शासकीय कानूनी कार्रवाई नहीं करना, अदालत नहीं जाना,
और जो संभव सहायता हो सकेगी वो हम आपको प्रदान करेंगे। अदालत मत जाना बोले। हाँ बोले अदालत मत जाना। बहुत ही सुंदर लगा, तो सुंदर। बोले अदालत नहीं जाना, उसको जो भी संभव सहायता हो सकती है वो हम अपने विभाग से दिलवाएंगे आपको, ऐसा बोले। कौन वही दिन है मैडम? हाँ दिन मैडम डॉक्टर रानी कुमार। अच्छा। हाँ नहीं तो अदालत क्यों नहीं जाना, मतलब ऐसा आपने बोला था कि हम अदालत जाएंगे? नहीं हमने तो नहीं बोला। बोले आप कोई कार्रवाई न करना और जो भी हो संभव सहायता हो सके वो सहायता हम दे देंगे, या हम तुम्हारे छोटे बच्चे को कुछ आपको BSc करा देंगे तो इससे भी कहीं रोजगार लग जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। बच्चे तो कर ही रहा, हमको तुम्हें पैसे चाहे हो तो हम छात्रों से जोड़ के पैसे दे हम कि हमें क्या करने पैसा हमारे डॉक्टर रानी कुमार आपको पैसे चाहे हो तो हम छात्रों से तुम्हें दिला दे। हम की साहब हमें क्या करते, आप लोग कौन था? हम दोनों गए थे, दीदी और भाई साहब। तो हमने की हर छात्रों को खा के काम आए, हमें ज्यादा हमारा तो लड़का करोड़ों का करते हैं। और तो कुछ नहीं आपके लिए हो सकती है मदद, और इतने भी कर सकते हैं। और अब तुम आगे कार्रवाई मत करना है, ऐसी भी कह दी। और तुम कल पैसे लगाओ मर जाओगे और तुम्हें कुछ फल मिलेगा कितनी बड़ी उसका आंसर कि आप वहाँ जहाँ पर SC कास्ट के लड़के रहते हैं कमरों में, वहीं के पास आप रहिए। कोई अलग से जगह? हाँ अलग से। पहले 27 नंबर कमरा था। अच्छा। और फिर उसको 22 नंबर कमरे में कर दिया गया। अच्छा वहाँ सारे SC के बच्चे रहते हैं? हाँ वहाँ SC के बच्चे रहते हैं, SC ST के बच्चे। हाँ लिखित में शिकायत प्रोफेसरों से नहीं की किसी से, क्योंकि उसको डर था कि अगर हम आज शिकायत करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मुख्य कारण था उसका। इस कारण से किसी भी प्रोफेसर की शिकायत नहीं की उसने। और घर में जरूर बताता था कि हमको पापा जाति का बहुत ही ज्यादा हमें दर्द है, और हरिजन के नाते अपन को जो है हमें प्रोफेसर लोग लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। हाँ इस कारण से बोले आप हमारी जाति अगर बदलवा दे तो बहुत अच्छी बात। प्रोफेसर एक नहीं, जितने पढ़ाते सभी लोग उससे घृणा रखते थे, ये मुख्य कारण था। हाँ क्लास में बिल्कुल जस्ट क्लास में उसने जब क्वेश्चन के आंसर दिए और उसने बताया तो उसने बोला कि भाई तुम हरिजन हो, अछूत हो, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते कभी, ये कोटा पा करके ही तुम आ गए यहाँ। अगर कोटा ना होता, तुम लोगों का आरक्षण ना होता तो तुम यहाँ तक नहीं आ सकते थे। कौन बोला है? ये प्रोफेसर बोलते थे। बहुत बार हुआ ऐसा? हाँ कई बार ऐसा हुआ, कई प्रोफेसर लोगों ने बोला ऐसा। जाति परिवर्तन का इसलिए करना चाहता था कि अगर हम जाति अगर चेंज नहीं करते हैं पढ़ नहीं पाएंगे तो हम मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे जाति बदल जाएगी तो हम बोले हम आगे बढ़ लेंगे और सब लोग हमको पसंद करने लगेंगे। बोले ये बोलता था कि अगर हम यहाँ से पढ़ लिख जाएंगे तो हम इंडिया छोड़ देंगे, हम विदेश में रहेंगे। हमको यहाँ हम पढ़ लिख के इंडिया में नहीं रहेंगे, आगे छूत में नहीं रहेंगे, हम तो बहुत विदेश जाएंगे, हम यहाँ तुम सबको ले चलेंगी, अपन एयरप्लेन से घूमेंगे। पापा तुम चिंता न करो, हम कर्ज करके उधार करके जैसे बना तैसे हम पैसा जुटाते हैं बच्चे का, आगे बढ़ने चाहते हैं हमेशा। हमारी आशा सब पानी फिर गया, हम किसी की लायक नहीं रहे, जीने की लायक नहीं रहे, केवल हमारा शरीर भर है, आत्मा हमारी चली गई है, हम तो जीने लायक नहीं। अगर हमको ये फैसला नहीं मिला अगर हमें, तो हम भी वहाँ फांसी देंगे, हमको इस धरती पर नहीं रहना। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हमको न्याय मिलना चाहिए शासन से, अगर न्याय नहीं मिलता तो हम भी मरेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है साहब। क्योंकि हमको जीने लायक यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं है, न हमारे पास कुछ बाकी रह गया है जीने के लिए। क्या रह गया हमको जीने के लिए? हम बेइज्जत हो गए भाई, क्या है हमारी तो पोजीशन जो भी थी, आज जो कुछ भी हमने कमाया सब हमने बच्चे में लगा दिया, और हमारे पास कुछ नहीं बचा लगाने के लिए, जीने के लायक नहीं कुछ बचा हमारे पास। अभी कैसे हम समय काटे? हम और पढ़ाना है सब, लाइक ही नहीं बची तो कहाँ पढ़ाएंगे? छोटे बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएंगे? पापा तुमने कहा कि जाति में जन्म ले लिया है, तुमने हमें जाति में पटाखा है, हमने की तो जाति में तो तुम पैदा हुए हो तो कहाँ जाओगे? हैं? जाति थोड़ी बदलती है, जाति बदलो नहीं बेटा, जैसे में पढ़ो, जैसे भी हो सकता है पढ़ो। तो हमारा इसके पीछे यही कहना है कि हमको सभी हरिजन मिल करके एक यूनियन बनाए
कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ जैसी घटना हमारे बच्चे के साथ हो चुकी, ऐसी भविष्य में हमारे किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो और वे स्वतंत्र पूर्वक पढ़ सकें। नहीं तो ऐसी स्थिति जहाँ पर जाति भेदभाव है, ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो हमको निश्चित है कि ऐसी खतरा हमेशा होता रहेगा। ये खतरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्वतंत्र रूप से पढ़ाई होना चाहिए हमारे। आपका जो दूसरा बेटा अभी जो कर रहा है बीएससी जी, उसने कभी बताया है उसके साथ क्या होता है? वो भी ऐसा बोलता है लेकिन छुपा के रखता है। वो भी छुपा के रखता है वहाँ पे। हाँ, मंदसौर में है हॉर्टिकल्चर। तो वो भी जाति छुपा के रखता है, तब वो वहाँ पर रह रहा है। उनके बाद आपको डर नहीं लगता है छोटे बच्चे के लिए? बिल्कुल डर लगता है साहब, पढ़ाने में हमको ये डर लगता है। 24 घंटे हम सुबह शाम दोनों टाइम हम फोन करते हैं बच्चे के लिए। तो अगर उसका एडमिशन जैसे एम्स जैसी जगह पे हो जाएगा तो भेजेंगे आप? नहीं भेजेंगे साहब, एम्स जैसी जगह पे होता भी है फिर भी नहीं हम भेजेंगे, क्योंकि एक बालक हम खो चुके हैं, हम दूसरा बालक नहीं खोना चाहते। हम छोटी पढ़ाई से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, छोटी सर्विस में ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये है हमारे विचार। इस पर हम तो ये सोच रहे कि जहाँ भी संस्थाएं हैं जाति को लेकर बहुत ही ज्यादा ऐसा भेदभाव हो रहा है हर जगह। हम तो गए, हमारा तो भाई चला गया, लेकिन हम जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है हमें लगता है कि वो भी सही न्याय में नहीं चल पाएंगी। हमारे साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। हमारे पिताजी को इतनी वेतन नहीं मिल पाती थी और भाई लोग को जैसे पैसे मतलब उनको चाहिए पड़ते थे तो हम कह देते थे कि भैया हमारे पास वेतन जितनी है सो आप ही ले लो, क्योंकि अब पापा के पास 3-3 माह वेतन नहीं मिल रही है। तो उस अवस्था हम उनके पास ही रहते हैं पिताजी की, तो हम ही उनकी सहायता करते रहते थे। हम अपने ससुराल में कभी पैसा नहीं दिया। अपने भाई को ही कहते थे कि भैया 4 साल बचे हैं या 3 साल बचे हैं या 6 माह बचे हैं, ऐसा करते करते जैसा ही एंड टाइम आया और बस हम लोग को छोड़ के चले गए। इस प्रकार से हम बहुत ही मुसीबत में हर समय उनकी दिक्कत में हमने पैसा दिया है और वैसे सहायता की, मानसिक तौर से भी बहुत सहायता की है। वो फेल होते जैसे उनने जबरदस्ती उनको फेल किया तो भी हमने बहुत सख्त भावना उनको दी कि भैया अपन लोग के साथ जो हो रहा है अब उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप कहो तो रिपोर्ट भी करें, लेकिन वो कहते थे कि रिपोर्ट नहीं करना, हमें किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना है, ये कह रहे थे वो। उनसे हम लोग की कम से कम आधा घंटा भी बात चलती थी तो वो यही कहते थे कि हमको टेंशन इस बात का ही है कि अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अपने इस जाति का क्यों बनाया गया है, भगवान ने हमें क्यों इस जाति में जन्म दिया है कि हमें इतना प्रताड़ित होना पड़ता है। काश हम सवर्ण के होते, ऊंची जाति के होते तो लोग हमें इतनी हीन दृष्टि से नहीं देखते, ये बोल रहे थे। और हमें अपना सरनेम भी चेंज करवाना है क्योंकि उनके जो प्रोफेसर थे वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और उनके यहाँ ऐसा चलता भी होगा जाति भेद के बारे में। अब जाति भेद के बारे में तो हर एक जगह चल रहा है। आप भी यहीं पे आ जाए, बगल में बैठ जाए। आप उनकी चाची हैं? हाँ चाची है, संविदा में। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम हमारे दमोह में है पोस्टिंग नरसिंहगढ़ के पास। प्रभाव की तो वहाँ भी है, वहाँ भी हम लोगों को चाय नहीं दी जाती है। जैसे कभी जाते हैं हम बाई जफेर तो वहाँ भी दमोह में भी हम लोगों को चाय नहीं दी जाती, तो हम तो आज तक वहाँ की चाय पिए भी नहीं है जाति के प्रभाव से। ही गरीबी से स्थिति में हम लोगों ने इतनी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया, लेकिन लोगों के कारण हम लोग तो बर्बादी हो गए हैं। अब उन्हीं के ख्वाब देखते थे हम लोग सभी के, चलो जी भैया पर लग जाए तो हमारे भी 2 बच्चे हैं और भी है तो चलो हम लोगों का सहायता मिले। ख्वाब देखते देखते उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया सर, बहुत ही गलत किया। हम लोगों की पूरी इच्छाओं पे पानी फेर और दिया। वो लोग कहते हैं कि अपना भारत महान है, लेकिन महान बिल्कुल नहीं। हमें प्यासे भी रहना पड़ता है तो भी हम किसी दूसरी जाति वाले से पानी नहीं ले सकते हैं। अभी भी ऐसा है, जो 50 साल पहले था उससे भी कहीं बुरी अवस्था में हम अभी भी हैं। अब क्या उसमें सुधार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सुधार। जहाँ हम सर्विस करते थे वहाँ भी लोग डिस्पोजल में चाय दी जाती है, कभी कांच की कप में नहीं दी जाती है चाय। मरने से पहले आपसे लास्ट बार हाँ लास्ट बार मेरी 4 फरवरी को हुई थी बात। 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में 2/22 और हॉस्टल में रहा हूँ मैं उसके पास में साथ में। जी तो क्या बोलता था? वो ये बोलता था कि चाचा हमको, मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद मैं माफी मांग लेता, उसका चाचा माफी मांग लेता के आनंद से, तो शायद मेरा लाडला नहीं जाता, हमसे अलग नहीं होता, हमारे बीच खिलका ही मारता है, यहाँ पे होता। कि उसने कहा था कि मुझको जो मेडिसिन के सब्जेक्ट उसमें मैं पास हो गया हूँ,
और जो ना पढ़ने वाला विषय CCMD उस मुझे जानबूझकर फेल कर दिया जाता है, बार बार फेल कर दिया जाता है। तो वो कहने लगे कि मेरी इनसे प्रोफेसर महोदय जी से, आनंद सर से बहस हो गई है कमरे में, पढ़ाई के हॉल में बहस हो गई है। तो यदि उसने कह दिया था उसी दिन कि तू कितना ही पढ़ ले, लेकिन तू MBBS करके डॉक्टर नहीं बन सकता है। और वो मुझे बार बार फेल करते हैं, और एक बार दो बार क्या पढ़ें उसमें क्या लिखें, जो है विषय में मैं लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार फेल कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? इसने इस चीज से परेशान था कि चूंकि हम लोगों की परिस्थिति दयनीय है, तो उसे बार बार घर की संख्या थी, इसलिए कि हम लोग पैसे बड़ी मुश्किल में उसको जुटा पाते थे। और करीब 6 साल हो गए रहते, तो उसे ये लगता था कि इसमें एक तो मेरे घर में परेशानी है, मैं बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाता तो आगे बढ़कर अपने घर परिवार को संभाल लेता। ये उसको थोड़ी सोचता था, लेकिन हमने पैसे की कमी नहीं आने दी। कहीं से भी हमने कर्ज लेकर के बैंकों से, सरकारी बैंकों से, प्राइवेट लोगों से पैसा ले लेकर उसे मतलब पैसे की कमी नहीं आने दी। उससे कहा कि नहीं तुमको पढ़ना है। जाति छोड़ने की बात करता था वो स्टैम्प पेपर लेकर। हाँ, उसने इतनी कोशिश की, यहाँ तक कि उसने नाम बदलने की कोशिश की। और वहीं दिल्ली कोर्ट से उसने स्टैम्प पेपर भी लिया, उसमें नाम सृजन कुमार लिखा है उसने, बाल मुकुंद के स्थान पर सृजन कुमार। उसे बहुत परेशान किया जाता था जाति के नाम पर। तो दोस्तों के बारे में बताया उसने अपने? हाँ, दोस्तों के बारे में बता देते कि कोई मुझे नहीं पूछता है, परेशान रहता था, अपने आप में घुटता रहता था। सर मैं तो ये कहता हूँ अपनी समझ से कि जब हमारा जो है भतीजा बालक बाल मुकुंद 28 तारीख को इसका स्वास्थ्य खराब था, भर्ती बना रहा है एम्स में, क्या हमको फोन नहीं लगा सकते थे परिवार वालों के लिए? भर्ती बना रहा, हमको नहीं मालूम कि कितना परेशान रहा है, अकेला रहा है, हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। हमको तो जब बुलाया बोले वो तबीयत खराब है, और जब 3 तारीख को खत्म हो चुका था। और न्याय चाहते हैं, नहीं तो हमारा एक बालक मरा तो हमारा क्या होना है? हम भी जाके कल मर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के मरने शायद हमारी संख्या कम हो जाए, हरिजन लोगों की संख्या कम हो जाए तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई जानबूझकर उसको फेल कर दिया जाता है पढ़ने में, जबकि हमारा बालक टैलेंट था। उसने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया था नवोदय विद्यालय से, जिसमें उसके 82% अंक है। उसका सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास रखा है। उसने कई प्रतियोगिताएं पास की हैं। हाँ, IIT टेस्ट पास किया उसने, 7वें नंबर में वो एम्स में गया था। मतलब हर जगह उसने पास हुआ, इसलिए हम लोग खर्चा लगाते रहे। हमें तो ये लग रहा है कि हमारा छोटा भाई है, वो भी बाहर पढ़ता है, ऐसा नहीं कि उसके साथ भी ऐसा हो, या हमारे आने वाले और भी भाई बहन हैं चाचा लोगों के, उनके साथ भी ऐसा हो। तो हम तो न्याय चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतनी घृणा थी कि वो ये सोचता था कि मेरी जल्दी से जल्दी MBBS हो जाए और मैं स्वतंत्र रहने लगूं, एम से हट करके अपना निजी व्यवसाय बना लूं। चलिए, अब हम इस चीज के लिए इंतजार करते हैं शासन की तरफ कि हमको न्याय कब मिलता है, जबकि आज 1 अप्रैल है, आज दिनांक तक हमें किसी प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ? हाँ, नहीं मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। पुलिस वाले भी तो सही नहीं लिखते हैं, कुछ बोलवाते हैं, कुछ लिखते हैं सर। और हमारे भाई का मानसिक संतुलन था खराब, मुकुंद के पिताजी का मानसिक संतुलन खराब हो गया था, क्योंकि जवान बच्चा चला गया तो उनने तो दस्तखत करवा लिए गए, आप दस्तखत डाल दो। उसने अपने मन का लिख दिया है। एम्स की जो पुलिस आई थी उसने अपने मन का लिखा है कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, ये बिल्कुल गलत लिखी है। अच्छा, उन्होंने लिखवा लिया है कि? हाँ, उन्हीं ने अपने हाथ से लिखा है, स्वयं ने अपने हाथ से लिखा है क्या कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मैं कैसे इस चीज के लिए स्वीकार कर सकता हूँ गिला शिकवा नहीं है? मुझे तो है उसे एम्स से। 18 Dalit students from India's premier institutions have committed suicide in last 4 years. Following is the list of Dalit students committed suicide in the last 4 years in India's premier institutions. M. Shrikant, final year, B.Tech, Indian Institute of Technology, Bombay, 1st January 2007. Ajay S. Chandra, integrated PhD, Indian Institute of Science, Bangalore, 26 August 2007. Jaspreet Singh, final year, MBBS, Government Medical College, Chandigarh, 27 January 2008.
Senthil Kumar, PhD, School of Physics, University of Hyderabad, 23rd February 2008. Prashant Gureel, first year, BTech, IIT Kanpur, 19th April 2008. G. Suman, final year, MTech, IIT Kanpur, 2nd January 2009. Ankita Bahda, first year, BSc Nursing, Singhi Institute of Nursing, Ahmedabad, 20th April 2009. D. Sham Kumar, first year, BTech, Sarojini Institute of Engineering and Technology, Bitewada, 13th August 2009. S. Amravati, National Level Young Woman Boxer, Center of Excellence, Sports Authority of Andhra Pradesh, Hyderabad, 4th November 2009. Bandi Anusha, BCom final year, Bila Mary College, Hyderabad, 5th November 2009. Pushpanjali Purti, first year MBA, Visvesvaraya Technical University, Bangalore, 30th January 2010. Sushil Kumar Chaudhary, final year MBBS, Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, formerly KGMC, Lucknow, 31st January 2010. Bal Mukund Bharti, final year MBBS, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, 3rd March 2010. J.K. Ramesh, second year BSc, University of Agriculture Sciences, Bangalore, 1st July 2010. Madhuri Sale, final year BTech, IIT Kanpur, 17th November 2010. G. Varalakshmi, BTech, first year, Vignan Engineering College, Hyderabad, 30th January 2011. Manish Kumar, third year BTech, IIT Roorkee, 13th February 2011. Linesh Mohan Gavle, PhD, National Institute of Immunology, New Delhi, 16 April 2011. This is by no means an exhaustive list, but covers only those cases which we were able to document and where parents and relatives have raised their voices and had accused the institutions of caste discrimination against their children that led to their suicides. We are sure that the actual numbers of Dalit students committing suicide in country's premier institutions in last 4 years will be much higher.